رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد میری عزیز ماؤں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ تمام سے سب سے پہلے آپ تمام سے معذرت چاہتی ہوں، اس لیے کہ اس کا پہلے وارم میں ویڈیو بننا نہیں ہوا ہے۔ کام اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ تمام بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کو خوش و آباد رکھے، آمین۔ تو چلیے اب ہم چلتے ہیں اپنے اصل مقصد کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق اور سچ بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ میری عزیز ماؤں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسی اہم بات لے کر ایک ایسی اہم ٹاپک کے اوپر آج ہم بات کرنے والے ہیں، جس کا میں اور آپ لوگ بہت انتظار کر رہے ہیں۔ یعنی آج ہم بات کرنے والے ہیں رمضان کے بارے میں۔ میری ماں اور بہنوں، سب سے پہلے میں بتانا چاہتی ہوں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے ہوئے رہتے ہیں اور تمام صحابہ اسی طرح بیٹھے ہوئے بات چیت ہوتی رہتی ہے۔ تو اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ سے فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم کس کے پاس جا رہے ہو اور تمہارے پاس کون آ رہا ہے۔ اس لفظ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ فرماتے ہیں۔ تو تمام صحابہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پاس کون آ رہا ہے۔ کہنے لگتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، کہیں ہمارے پاس آسمان سے پری تو نہیں آ رہی ہے۔ کوئی صحابہ اٹھ کے یہ کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، کوئی دشمن ہم پر حملہ کرنے کے لیے تو نہیں آ رہا ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، کہیں حور جنت کی حور تو ہمارے پاس نہیں آ رہی ہے۔ تو اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے صحابہ کرام، تمہارے پاس رمضان آ رہا ہے اور تم رمضان کے قریب جا رہے ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ان لوگوں کو بتاتے ہیں تو تمام صحابہ کرام بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ اس وقت میں ان لوگوں کے پاس رمضان آ رہی تھی اور وہ رمضان کے قریب ہو رہے تھے۔ تو آج بھی ہم ایسی ہی حالت میں ہیں، میں بھی ہو یا آپ بھی ایسی حالت میں ایسے ہی دنوں سے گزر رہے ہیں، تاکہ ہم رمضان کے قریب جا رہے ہیں۔ دن گزر جا رہا ہے اور ایک دن گزرتے گزرتے ہم رمضان کے قریب جا رہے ہیں اور رمضان ہمارے قریب آتا جا رہا ہے۔ تو دیکھیے رمضان کن چیزوں کو کرنے کے لیے حکم دیتا ہے، کن چیزوں سے بچنے کے لیے کہتا ہے، رمضان اصل میں کیا کہتا ہے۔ رمضان کی تیاری مسلمان کیوں کرتے ہیں؟ میری ماں اور بہنوں، رمضان آتا ہے تو تمام ہر کسی کے مسلمان مومن کے گھر میں یہ ہلچل ہو جاتا ہے کہ رمضان آ رہا ہے، گھر صاف کرو، رمضان آ رہا ہے، کپڑے دھو لو، رمضان آ رہا ہے، اپنے آپ کو صاف کرو، رمضان آ رہا ہے، یہ کرو وہ کرو، سامان لاؤ، یہ لاؤ، ادھر جاؤ ادھر جاؤ۔ لیکن رمضان کی سب سے بڑی تیاری یہ ہے کہ اپنے دل کو صاف کر لیں، اپنی دل کی نیت کو درست کر لیں، اپنی دل کی نیت کو اچھا بنا لیں۔ یہاں تک کہ کیونکہ رشتہ داروں کے بارے میں، رشتہ داروں کے لیے اپنے دلوں میں بغض، کینہ، کپٹ، چاڑی، چغلی، غیبت، جو بھی دوسروں کے لیے برائی بھر کے رہتے ہیں اپنے دلوں میں، اس برائی کو نکال کر پھینک دیں۔ کیونکہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے، رمضان برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس لیے سب سے پہلے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی نیت کو صاف کر لیں، اپنی نیت کو درست کر لیں اور رمضان کے مکمل فائدے اٹھانے کی کوشش کریں۔ رمضان ہمارے پاس میزبان بن کے نہیں آ رہا ہے، میزبان یعنی ہمیشہ ہمارے پاس رہنے کے لیے نہیں آ رہا ہے، رمضان مہمان بن کے ہمارے پاس آ رہا ہے۔ رمضان 1 مہینے کے لیے، 1 منتھ کے لیے ہمارے پاس رمضان آ رہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کو رمضان کی طرح گزاریں۔ ایسا نہیں ہے کہ رمضان سے پہلے چاڑی، چغلی، غیبت، زنا، بے پردگی، ہر وہ
वो बुराई चलती थी रमज़ान से पहले, लेकिन रमज़ान में भी वही काम चल रहे हैं। रमज़ान में और बाकी के दिनों में कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है। रमज़ान का महीना एक ऐसा महीना है जो 11 महीने हैं, 11 महीनों के नाम अरब वाले खुद रख लिए हैं, लेकिन रमज़ान का एक नाम अल्लाह तबारक व तआला ने रखा है। रमज़ान का लक़ब अल्लाह ने दिया है। रमज़ान को अल्लाह ने इतना अफजल करार दिया है, यहाँ तक कि रमज़ान के महीने में जहन्नुम के दरवाजे, दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिया जाता है और जन्नत के दरवाजों को खोल दिया जाता है। शैतान को, जिन्नात को बंद कर दिया जाता है, अल्लाह के रहमत के, बरकत के दरवाजों को खोल दिया जाता है। रमज़ान एक ऐसा महीना है, रमज़ान का माना ही है जल जाना। रमज़ान का माना, रमज़ान कहते ही है कि जल जाना। जल जाना यानी हम इंसान जलना नहीं है, बल्कि हमारे गुनाहों को जलाने का महीना है, हमारे गुनाहों को साफ क्लीन करने का महीना रमज़ान है। तो रमज़ान से पहले भी गफलत की ज़िंदगी, रमज़ान से पहले भी चाड़ी चुगली में अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। रमज़ान से पहले हम लोगों की ज़िंदगी इतनी बदतमीज़ी, इतनी गफलतों के साथ गुजरी और रमज़ान में भी यही हालत है। तो रोज़ा रह कर भी हम गुनाह क्यों करते हैं? रोज़ा रह कर भी हमारे इतने बुरे बुरे हालात क्यों बन जा रहे हैं? रमज़ान कहता है मुसलमान भाइयों और बहनों से, हर मुसलमान बंदा और बंदी से रमज़ान कहता है कि ऐ मुसलमान बंदों, मैं तुम्हारे पास इसलिए नहीं आ रहा हूँ ताकि तुम सारा महीना इफ्तारी सहरी के नाम से राशन, सौदा, चावल अपने घरों में जमा कर लें। मैं तुम्हारे पास इसलिए नहीं आ रहा हूँ ताकि तुम रमज़ान के महीने के नाम से नए कपड़े सिलवाते रह जाओ, अपने आप को सजाते रह जाओ, अपने आप को अच्छे से मेकअप करते रह जाओ। मैं इसलिए नहीं आ रहा हूँ। रमज़ान कहता है मैं तुम्हारे पास इसलिए नहीं आ रहा हूँ कि तुम रोजे के नाम से पूरा दिन, पूरा महीना, पूरा वक्त सोते रहो। रमज़ान कहता है मैं तुम्हारे पास इसलिए नहीं आ रहा हूँ ताकि तुम इफ्तारी के वक्त में पेट भर के खा लो और इशा और तरावी को छोड़कर घर्राटे मारते सो जाओ। मैं तुम्हारे पास इसलिए नहीं आ रहा हूँ, मैं तुम्हारे पास इसलिए आ रहा हूँ ताकि तुम मेरा मुकम्मल फायदा उठाओ, ताकि तुम मेरी इज्जत करो, ताकि तुम मेरी कदर करो। मैं तो रहमान की रहमत बन के तुम्हारे पास, तुम्हारे घर आ रहा हूँ। मैं तो गफ्फार की मग़फ़िरत बन के तुम्हारे घर आ रहा हूँ। तो आज हम रमज़ान को क्यों इतना नाहकीर चीज़ समझे हुए हैं? सिर्फ रमज़ान आती है, खुशी मनाते हैं, हर मुसलमान के दिल में खुशी का एक उजाला लग जाता है, लेकिन किस लिए कि कपड़े पहने, ये लाए वो लाए, ये सजाए वो सजाए, घर को साफ करना है, घर को क्लीन करना है। लेकिन रमज़ान का असल मेहमान नवाजी, रमज़ान की असल कदर, असल इज्जत ये है कि रमज़ान के एक एक लम्हे को, रमज़ान के एक एक मिनट को कदर करते हुए, रमज़ान की मेहमान नवाजी का मतलब है कि रमज़ान में खूब से खूब कुरान की तिलावत करें। रमज़ान की मेहमान नवाजी का मतलब यह है कि पंचगाना नमाज खुशू व खुशू के साथ अदा करें। रमज़ान की मेहमान नवाजी का मतलब यह है कि सदका खैरात के नाम से अपनी बड़ाई ना जताएं, दूसरों को सदका करते हुए रमज़ान में अपना बड़पन ना दिखाएं। रमज़ान की असल मेहमान नवाजी यह है कि चाड़ी चुगली से बचकर, अपने आप को गुनाहों से बचाकर अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने के लिए कोशिश करें। रमज़ान की असल मेहमान नवाजी यह है कि हर वक्त में अल्लाह की याद में अपना पूरा महीना गुजारने की कोशिश करें। इसको रमज़ान की मेहमान नवाजी कहा जाता है। लेकिन आज हम लोग रमज़ान क्या मनाते हैं, कैसे मनाते हैं? खास तौर पे रमज़ान नौजवान लड़कों और लड़कियों से कहता है, ऐ नौजवान लड़कों, ऐ लड़कियों, मैं तो तुम्हारे पास इसलिए नहीं आ रहा हूँ ताकि तुम सारा दिन, सारा पूरा महीना, मेरा पूरा वक्त तुम अपने फ़ोन में चिपके रहो, अपने फ़ोन में अपनी ज़िंदगी गुजारो। इससे पहले मामूल औकात में भी गाने सुनना, फ़ोन में गंदी चीज़ें देखना गलत है, तो हम
रोजे की हालत में रमजान के महीने में भी ऐसे काम कर रहे हैं तो अल्लाह कहाँ माफ करेगा। रमजान तो एक ऐसा महीना है जो कुछ मांगो अल्लाह दे देगा। अल्लाह अपने रहमतों के दरवाजे खोल देता है, हमारी तौबा का इंतजार कर रहा होता है। पता नहीं मेरी माँ और बहनों अगले रमज़ान तक हम पहुंच सकेंगे या नहीं। रमज़ान तो हर साल आएगी, रमज़ान तो हर बार आएगी, लेकिन इस बात का यकीन नहीं है कि हम रमज़ान तक पहुंच सकेंगे या नहीं, रमज़ान को फिर पा सकेंगे या नहीं। रमज़ान में वो तहज्जुदें, वो इफ्तारी का वक्त, वो सहरी का वक्त फिर हमें नसीब होगा ही। रमज़ान की पूरी मेहमान नवाजी करें, क्योंकि वो हमेशा हमारे पास रहने के लिए नहीं आ रहा है। रमजान का एक लम्हा अगर जाए हो गया तो समझो कि 1000 लम्हा हमसे गुजर गया है। रमजान का एक लम्हा, एक मिनट भी 1000 मिनटों से भी ज्यादा बेहतर है। तो गौर कर लीजिए रमजान क्या चीज है। रमजान में अल्लाह गुनाहों को माफ करता है, हमारे गुनाहों को जला देता है, हमारे गुनाहों को राख कर देता है। जैसे राख बुकनी हो जाते हैं, इसी तरह हर मुसलमान मर्द और मोमिन के गुनाहों को अल्लाह माफ कर देता है। इस महीने में जिना जैसी बड़े गुनाहों को, चाड़ी चुगली, कीना, कपट, बेपर्दगी, हर वो बुराई, हर वो गुनाह को अल्लाह माफ करने का मौका अल्लाह तबारक व तआला रमजान में अता करता है। 11 महीनों की जिंदगी हमारी गफलत में गुजरी है, 11 महीनों की जिंदगी हमारे गुनाहों में, गलतियों में गुजरी है। तो 11 महीनों की पूरी गुनाहों को, गलतियों को दुरुस्त करने का महीना रमजान है। तो रमजान को अच्छे से अच्छे इज्जत करें, रमजान की कदर करते हुए अपने आप को अच्छे से अच्छा अल्लाह के लिए सुपुर्द कर दे, अपना पूरा वक्त अल्लाह के लिए दे दे। इतने महीने हम तो बेगफलत में गुजारे हैं, लेकिन एक महीना अल्लाह के लिए सुपुर्द कर दें। एक महीना अल्लाह के सामने ऐसे रोते रहो, ऐसे मांगते रहो, अल्लाह के सामने उन लोगों के बारे में शिकायत करो, अल्लाह के सामने जो कि मुसलमानों पे, जो कि हर मोमिन पे अल्लाह जो जालिम लोग जुल्म कर रहे हैं उनके बारे में शिकायत करो, और जो आपके दिलों को दुखाते हैं उनके बारे में अल्लाह को शिकायत करो, और जो आप चाहते हैं उनके बारे में अल्लाह को मांगो, सब कुछ करो। हम ऐसा नहीं करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मस्त मजा ले लेते हैं। इफ्तारी का वक्त हो गया है तो इतना पेट भर के खा लेते हैं कि सांस भी नहीं फिरती। तो नमाज कहाँ से पढ़ पाएंगे हम लोग? सांस भी नहीं मुश्किल लेना है तो नमाज कैसे अदा होगी हम लोगों की? सेहरी में इतना भी मत खाओ कि फिर कल रोजा रहना हम लोगों के लिए मुश्किल बन जाए। तो रमजान की भरपूर कदर करते हुए रमजान का मुकम्मल फायदा उठाने की कोशिश करें। रमजान तो रहमतों का, बरकतों का और गुनाहों को माफ करने और दिलों को बदलने के लिए दुआएं करने का महीना है। अपने दुआओं को भी बदलने के लिए अगर चाहते हैं तो दुआएं कीजिए अपने अल्लाह से, अपने अल्लाह के सामने रो कर अल्लाह से माफी मांगिए, अल्लाह के सामने जो कुछ चाहते हैं अल्लाह के सामने हाथ फैला दीजिए। और ये कि रमजान में एक बात बताना मुनासिब समझती हूँ, रमजान में अल्लाह तबारक व तआला 4 लोगों की बख्शिश नहीं फरमाएगा, हर किसी की बख्शिश करेगा। अल्लाह माफी मांगने पर रमजान हो या उससे पहले अल्लाह हर किसी को भी माफ कर देता है, क्योंकि वो गफूर है, रहीम है। लेकिन रमजान में भी ऐसे मुबारक रहमत बरकत वाले महीने में भी 3-4 लोगों की बख्शिश नहीं की जाएगी। उनमें से पहला यानी उनमें से सबसे पहला इंसान जो अपनी माँ बाप की कदर नहीं करता है, जो अपनी माँ बाप की इज्जत नहीं करता है, उन शख्स को, उस औरत को, उस लड़के को, उस लड़की को अल्लाह माफ नहीं करेगा सबसे पहले दर्जे पे। और दूसरा जो ज्यादा से ज्यादा शराब पीता है, शराब में मशरूफ रहता है, अल्लाह उसको भी माफ नहीं करेगा। और तीसरा जो रिश्तेदार को तोड़ता है, रिश्तेदारी को तोड़ता है, किसी को मिल के रहने से उसको गवारा नहीं है, आता है रिश्तेदारी को तोड़ देता है, अल्लाह उसको भी माफ नहीं करेगा। और चौथा इंसान जो अपने दिल में कीना, बुग्ज, बुराई, चाड़ी, दूसरों के लिए अपने दिल में बुराई भर के रहता है, दूसरों के बारे में अपने सीने में बुग्ज भर के रहता है। बुग्ज यानी कि नफरत, दूसरों के लिए अपने दिलों में नफरत रखता है। इन 4 लोगों को अल्लाह तबारक व तआला रमजान जैसे
मुबारक महीने में भी इन लोगों की माफ़ी नहीं की जाएगी। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि इन 4 कामों से, इन 4 आदतों से, इन 4 हरकतों से हम खुद भी हिफाजत में रहें और अपने घर वालों को, अपने अहल वालों को, अपने गली वालों को, अपने शहर वालों को जहाँ तक बोले, जहाँ तक पता चले उन लोगों को भी समझाने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे घर के अंदर भी एक बड़ी सी बड़ी उम्मत है। हम दूसरों के पास जाने से पहले खुद हमारे घर की उम्मत को हम देख लें, क्योंकि हमारे भी घर में उम्मत ही है मेरी माँ और बहनों। तो हम रमज़ान को रमज़ान समझकर रमज़ान का मुकम्मल फ़ायदा उठाने की कोशिश करें और रमज़ान को वक्त बेकार करके ना गुजारें, फ़ोनों में, टीवियों में, गाने बजाने में, बातों में, मीटिंग्स में ना गुजारें। जितना हो सके अल्लाह के ज़िक्र में रमज़ान को गुजारने की कोशिश करें। इसके बातों को, उसके बातों को, इसकी गीबतों को, उसके घर में क्या हुआ, इसके घर में क्या हुआ, ये तो 11 महीने चलते ही हैं। तो एक महीने में छोड़ो ये बातें, ये कामें छोड़ो, अल्लाह के लिए अपना वक्त मसरूफ़ कर दो। ये कामें तो, ये ज़िंदगी, ये पकवान, ये खाना, ये चलना, ये खिलाना, ये पिलाना, इसका देखना, उसका देखना, ये धोना, ये नहाना, ये तो जिंदगी भर का काम है, औरत हो या मर्द का। तो एक महीना अपने अल्लाह के लिए सुपुर्द कर दो, एक महीना अल्लाह के जिक्र व अस्कार में गुजारने की कोशिश करो। तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है रमज़ान में जो भी तुम मांगो मैं दे दूंगा, जिस चीज़ का तुम ख्वाहिश करते हो मैं तुम्हें दे दूंगा, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, तुम जो भी मांगना चाहते हो मांगो, मैं कबूल कर लूंगा। अल्लाह तबारक व तआला इतना प्यारा है कि हमारे गुनाह, हमें गुनहगार हैं, हम खतेकार हैं, इतना गुनाह करने के बावजूद भी हमारा अल्लाह हमें माफ़ करता है, हमें सब कुछ देता है, खिलाता है, पिलाता है। तो हम रमज़ान में मुकम्मल फ़ायदा उठा लें, जो हम चाहते हैं। अगर घर चाहते हैं तो मांगो रमज़ान में अल्लाह से, अगर दौलत चाहते हैं तो मांगो अल्लाह से, अगर सेहत चाहते हैं तो मांगो अल्लाह से। ये तमाम हर दिन भी कबूल होंगे, लेकिन रमज़ान सिर्फ इबादतों का महीना है। तो रमज़ान का मुकम्मल फ़ायदा उठाने का अल्लाह मुझे और आप तमाम को अल्लाह हिदायत दे, रमज़ान का भरपूर इज़्ज़त करने की अल्लाह हमें तौफीक दे और रमज़ान की फजीलत को जानते हुए, याद रखते हुए रमज़ान में बुरे कामों से, बुरे गुनाहों से, बुरी नीयतों से, बुरे बातों से अक्सर औरतें महफूज रहकर अपने अल्लाह के ज़िक्र में अपनी एक महीने की ज़िंदगी को अल्लाह के लिए सुपुर्द कर दें, क्योंकि अगली रमज़ान हमें नसीब होगी या नहीं हमें मालूम नहीं। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आप तमाम को, सारी उम्मत मोहम्मदिया को अल्लाह तबारक व तआला रमज़ान नसीब फरमाए, हम तमाम को अल्लाह तबारक व तआला रमज़ान तक पहुँचाएँ। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को रमज़ान के वो रोज़े, वो नमाज़ें, वो तक़वा, वो खौफ, वो सहरी, वो इफ्तियारी का मज़ा अल्लाह हमको लेना नसीब फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो चलिए फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ इंशाअल्लाह।